بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو لندن سے السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ جناب آج میں جلدی پروگرام کر رہا ہوں اور چند ضروری باتیں کرنی تھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انڈیا، پاکستان جو جموں کشمیر میں، خاص طور پر پاکستان اور جموں کشمیر میں اور سو کولڈ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان میں کافر اور غدار کہنا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ جس آدمی سے اختلاف ہو جائے اس کو فوراً غدار کہہ دیا جاتا ہے، جس سے مذہبی اختلاف ہو جائے یا مسلک کی کسی بات پر اعتراض ہو جائے یا دوسرے مسلک کا کوئی آدمی ہو تو اس کو بلا جھجک کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ عام سی بات ہے کہ کسی کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اختلاف ہو جاتا ہے تو فوراً کہہ دیا گیا کہ بھی یہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آدمی فوراً غدار ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں اور آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں بے شمار غدار پھر رہے ہیں، کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اختلاف کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو آدمی ہمارے نیریٹو سے اختلاف کرے، ہماری آئیڈیالوجی کو نہ مانے، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اس سوچ کو وہ نہ اپنائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی کا ایجنٹ بن گیا اور یہ غدار بن گیا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس آدمی کو غدار کہہ کر یا کافر کہہ کر جان سے مارنے کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار حاصل ہے۔ میرے نزدیک جو تعریف ہے غداری کی، وہ یہ میرے گاؤں کا نام ہے نکر شمالی۔ اگر نکر شمالی یعنی میرے گاؤں کی دشمنی کسی دوسرے گاؤں کے ساتھ ہو جائے، یعنی ہمارے یہاں پنجیری بڑا شہر گاؤں ہے، تو اگر پنجیری کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، دشمنی ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور میں نکر شمالی کے مفادات کا تحفظ نہ کروں اور پنجیری والوں کے ساتھ مل جاؤں تو میں اپنے گاؤں کا غدار ٹھہرا، کیونکہ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفاد نہیں دیکھا، اپنے خاندان جو میرا خاندان نکر شمالی میں رہ رہا اس کے مفاد کا خیال نہیں دیکھا اور میں نے پنجیری والوں کی حمایت کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے غداری کی ہے اپنے گاؤں کے ساتھ اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ذرا سے بڑے لیول پہ لے جائیں، تحصیل لیول پر، تو میرا تعلق بھمبر تحصیل سے ہے اور اگر بھمبر تحصیل اور برنالہ کی جو تحصیل ہے ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے یا سمانی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے اور میں اگین بھمبر کے مفادات کا خیال نہیں رکھتا، برنالہ یا سمانی کے مفادات کا خیال رکھتا ہوں اور ان لوگوں کو ان کا ساتھ دیتا ہوں اور اپنی کمزوریاں ان کو جا کر بتا دیتا ہوں اور دوسرے لفظوں میں تحصیل بھمبر کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے بھمبر تحصیل کا غدار ہے۔ پھر اسی بات کو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جا سکتے ہیں۔ اگر میں بھمبر ریاست کے مفادات کا خیال نہیں کرتا، اس کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوں، تو مجھ پر یہ بات لاگو ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا بھمبر جو ہے ڈسٹرکٹ ہے اس کا غدار ہے۔ اس بات کو آگے آپ آزاد کشمیر کے لیول پر بھی لے جا سکتے ہیں اور اسی کلیے کے تحت آپ اس کو جموں کشمیر کے سطح پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جموں کشمیر کے مفادات، اس کی ذاتی، اس کی وحدت، اس کی جو ہے نا انٹیگریٹی ہے، اس کی جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ شناخت ہے، اس کے خلاف ایک آدمی کام کرتا ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جموں کشمیر کا یعنی روغدار نہیں تو کم از کم مخالف ضرور ہے، یہ وفادار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اس حد تک جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو جس آدمی نے اختلاف کر دیا اس کو فوراً غداری کا لیبل چسپاں کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ یہ غداری کا لیبل یہ تقسیم کون کرتا ہے؟ عام طور پر پاکستان کے اشرافیہ، ان کی ایجنسیاں تقسیم کرتی ہیں۔ پھر ان کے جو گماشتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یعنی سو کال آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں یا ایون جموں کشمیر آن دی ادر سائڈ آف دی ایل او سی، وہاں پر بھی ان کے گماشتے بہت ہیں، وہ جو ہے نا لیبل تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات وقت یہ تھا کہ یہ جو ایجنسیاں تھیں انڈیا کی یا پاکستان کی، وہ دوسروں کو کہتی تھیں کہ یہ غدار ہیں۔ پھر یہ کام ہم نے خود شروع کر دیا جماعتوں کے لیول پر۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جماعتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو غدار کہا جاتا ہے۔
जब तक वो एक साथ काम करते हैं तो वो ठीक हैं। जब उनका आपस में इख्तलाफ हो जाता है और ग्रुपिंग हो जाती है तो कहते हैं कि ये गद्दार हो गए, ये किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ये बात मुझे कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि अ, हमारे एक साथी हैं गिलगित से, अब्दुल हमीद खान उनका नाम है, बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के चेयरमैन हैं। अ, वो उनसे हमारी मुलाकातें रही हैं जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के अंदर कई कॉन्फ्रेंसों में हमने प्लेटफ़ॉर्म शेयर किया या सेमिनार्स में शेयर किया प्लेटफ़ॉर्म। इसी तरीके से ब्रसल्स में भी हमारी उनके साथ मुलाकातें होती रही हैं। उनका एक काम करने का एक अपना अंदाज़ था। वो ज़रूरी नहीं कि उनका अंदाज़ जो है वो सबको अच्छा लगे। वो अपनी बात मनवाने की ज़िद क किया करते थे, ख़्वाह वो ठीक हों या ना हों, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपनी राय को मनवाने का उनको पूरा हक है। इस बात पर हम तो ये कह सकते हैं कि कोई आदमी ये कह सकता है कि ये आदमी ज़िद्दी है या मामलात को समझता नहीं है या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम मैं तो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा। तो ये बात इस तरह से आई है कि अब उन्होंने स्ट्रगल की, बहुत अरसा उन्होंने गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ थीं, ख़ास तौर पर गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से उनको बेनकाब किया। फिर शायद और भी उन्होंने कुछ काम किए होंगे चूँकि उनके कामों के बारे में मेरे पास कोई पूरी तफ़सील नहीं है। तो कुछ लोगों ने बाद में जब इसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था तो उस वक़्त भी कहते थे कि ये गद्दार है, कुछ लोग कहते थे ये गद्दार है। और अब जब उसने कॉम्प्रोमाइज़ करके पाकिस्तान के साथ कुछ हम-आहंगी कर ली है, मुझे अगेन इसकी तफ़सील मालूम नहीं कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, क्या वजूहात थी और किस लेवल पर उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लेकिन है कि काफ़ी अरसा वो पाकिस्तानी अदारों के पास रहे या उनकी तहवील में रहे या जो भी आप लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लें, तो अब वो पब्लिक में आ गए हैं। तो अब जबकि वो पाकिस्तान के साथ एक उनकी हम-आहंगी हो गई या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब भी कहते हैं कुछ लोग कि ये गद्दार हैं। तो गद्दारी का लेबल जो है ये जान नहीं छोड़ता। जब वो पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ काम कर रहे थे, उस वक़्त भी गद्दारी का इल्ज़ाम था। अब जबकि वो पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इतराज़ नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि मैं साबका रवैया जो मेरा था गलत था। अब वो पाकिस्तान की पॉलिसियों की तारीफ़ करते हुए, हम-आहंगी अख्तियार करते हुए उन पाकिस्तान की पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं, तो तब भी गद्दारी का लेबल उन पर लग रहा है। यहाँ पर असल में हमारे एक दूसरे साथी हैं मंजूर परवाना साहब। जिनका तल्लुक बल्तिस्तान से है, तो वो माशाल्लाह बड़े पढ़े-लिखे शायर हैं, समझदार आदमी हैं। तो उन्होंने कहा भी गद्दार कहने से पहले ये देख लें कि क्या अब्दुल हमीद खान ने गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के हकूक़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना बंद कर दिया? उसकी जो स्ट्रगल थी वो ज़्यादातर गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के लिए थी, उनके हकूक़ के लिए थी। पहले भी जब उसको कहा जाता था गद्दार और पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान के आप ये नहीं कहूँगा कि खिलाफ बोलता था, पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ बोलता था। उन पर क्रिटिसिज़्म करता था, उस वक़्त भी गद्दार कहते थे और वो उन लोगों के हकूक़ की बात करता था। अब सवाल ये है कि क्या वो अब गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के हकूक़ के खिलाफ काम कर रहा है? अगर वो गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के हकूक़ के खिलाफ काम नहीं कर रहा, तो फिर गद्दार कैसे ठहरा? यही बात जो है ना मंजूर परवाना साहब कह रहे हैं। अगर मसलन उनका किसी आदमी के साथ इख्तिलाफ है या कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो एक नए अंदाज़ से पॉलिटिक्स करना चाहता है, पहले उसकी स्ट्रगल किसी और अंदाज़ से थी। शायद उस सिलसिले में उसने ये सोचा होगा कि मैं कामयाब नहीं हुआ या कुछ और मजबूरियाँ रही होंगी, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं अब नए अंदाज़ से सियासत करना चाहता हूँ, नए अंदाज़ से लोगों के हकूक़ की बात करना चाहता हूँ, तो इसमें गद्दारी का पहलू कहाँ से आ गया? तो वो स्टिल वो अब लोगों के हकूक़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है या करेगा। तो शायद कुछ लोगों को ये दर्द हो रहा हो या ये तकलीफ़ हो रही हो, ये प्रॉब्लम हो रहा हो कि कल ये भी मैदान में आ गया, बात करने का उसके पास सलीका है, उसके तल्ख़ वास्ते भी हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान की हिमायत भी उसको हो। तो हो सकता है कि दूसरे लोगों की जो है ना पोज़ीशन वो अंडरमाइन हो जाए। तो इसलिए उसको चैलेंज समझते हुए गद्दार कह रहे हूँ। तो मैं आप से लोगों से ये दरख़्वास्त करूँगा कि किसी को गद्दार या किसी को काफ़िर कहने से पहले सोच लिया करें। ये सियासी इख्तिलाफ़ भी हो सकता है। हिकमत अमली पर भी इख्तिलाफ़ हो सकता है, नुक़्ता नज़र से भी इख्तिलाफ़ हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ से आप देख रहे हों, वो आपको गलत नज़र आ रहा हो। लेकिन अगर आप अपना ज़ाविया बदलें, अपना पर्सपेक्टिव बदलें, अपनी जगह बदलें, तो शायद आपके सोचने का अंदाज़ भी बदल जाए। तो मैं इस पे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी-सी ना दिलों में वुसअत पैदा करें।
मेरी भी बहुत से लोगों से यानी कई बार अनबन भी हो जाती है, इख्तिलाफ भी हो जाता है। मेरी अपनी स्ट्रगल है, मेरी अपनी एक रिसर्च है, मेरी एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। मेरी जमात जो है उसके अंदर भी बाज़ औक़ात लोगों की स्ट्रैटेजी के साथ मेरा इख्तिलाफ हो जाता है। लेकिन मैं कम से कम किसी को गद्दार नहीं कहता। ये अगर फ़र्ज़ किया कि कुछ लोगों ने देखें जी इस वक़्त भी जम्मू कश्मीर के लोग उनमें शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। नज़रियाती तौर पर भी इख्तिलाफ़ात हैं, रीजनल लेवल पर भी हैं, मज़हबी लेवल पर भी हैं, विदिन मुस्लिम कम्युनिटी इख्तिलाफ़ात हैं। इसके अलावा दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, उनके साथ भी इख्तिलाफ़ात हैं। तो हम इक़्तिदारी के जो सर्टिफ़िकेट है ये तक़सीम करना बंद कर दें। इसको अब कोई नहीं मानता। कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाएँ। लेट अस वर्क टुगेदर एंड लेट अस ऑल अपने आप को ये देखें कि हम सारे जम्मू कश्मीर के शहरी हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं। उसकी वहादत के लिए स्ट्रगल करें, लोगों के हकूक़ के लिए स्ट्रगल करें। तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। आई होप कि मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी। तो लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वी आर स्टिल देयर। रियासत जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से लोगों की स्ट्रगल भी काफ़ी मुतासर हुई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कोरोना हो गया स्ट्रगल को भी, नहीं, नहीं ये बात नहीं है। स्ट्रगल जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम लोग जो हैं स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं, वक़्त लगेगा। एनीवे आई विल लीव इट एट दैट एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अगर आपको मेरी बातें या मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। खुदा हाफ़िज़।